Okay, so the first chapter, basic concept of chemistry in at the beginning, it is talking about sorry, classification of matter. So matter is अच्छा आपको एक ये करना बताना था यो और some basic concepts of chemistry. Like first page पर it is given that bifurcation of matter. ठीक है, classification of matter. सबसे पहले matter क्या होता है? Anything which occupies space and has mass. ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक होती है. whichever thing qualifies these two criteria are considered matter. If they are not, they won't be considered matter. Okay, for example, light, when it is moving, it is not considered matter. It is considered wave. In general, however, there is like dichotomy in case of light. उसका mass in matter equivalent भी हम निकाल सकते हैं, but that is just dichotomy. Dichotomy मतलब दो philosophy का. We have two approach to look at light. Chemistry में उसको generally हम starting में तो wave ही मानते हैं और कुछ मान नहीं सकते हैं क्योंकि वो matter के अंदर consider नहीं होता है. Matter का classification. So basically matter is divided into three major categories. The two major categories, pure substance and mixtures. Pure substance is further divided into elements and compounds. Mixtures are divided into homogeneous and heterogeneous. So we'll just take up this part and then I'll start defining each and every. States of matter वैसे हम लोग को दो पढ़ा है लेकिन तो प्लाज्मा पांच होते हैं. हाँ, प्लाज्मा नहीं है, अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है प्लाज्मा वगैरह के बारे में. और दूसरा बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, वो भी हम लोगों को अभी के टाइम पे नहीं पढ़ना. मैंने देखा था 21 टाइप्स हाँ, 5 मेजर टाइप हैं. हाँ वो सब हैं बट वो नहीं पढ़ना है अभी हम लोगों को. हम लोग को बेसिक वाली चीजें केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जाननी है. ओके, anything that occupies space and has subdivided into pure substance. Pure substance क्या है? Any matter whose सर आप लिख रहे हो क्या? क्योंकि दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, इधर सिर्फ आपका बुक दिख रहा है. ओहो, हाँ अभी दिख रहा है. हाँ सर अभी दिख रहा है. ओके, pure substance, any matter whose constitutional
composition or those composition in terms of constituent remains same everywhere. There is one more thing. These substances cannot be separated into different entities entities using merely physical methods. ठीक है, ये दो चीजें इनके बारे में होती हैं. And then comes mixtures. प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारे सब कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एंड मिक्सचर्स के अंदर कैटेगरी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरीज हैं. मिक्सचर्स के अंदर होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तीन सब कैटेगरीज एलिमेंट्स के हैं. मिक्सचर द सब्सटेंसेस क्या हुआ, ऊपर का नोट करना है. अरे ये वैसे पीडीएफ भेज दूंगा आपको. ओके चले. Mixtures, the substances made from or made by mixing, made by mixing more than ऊपर more than one pure substance are referred as mixtures. है. इनके और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस मेजर ये रहता है कि the constituents can be separated. The constituents can be separated by
suitable physical means. ये अगला कैटेगराइजेशन जो है हमारा प्योर सब्सटेंस का है, उसमें एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स बाय डेफिनेशन आर purest form of matter, the purest form of matter constituted by atoms of similar type, that is atoms with same atomic number. Elements may exist in atomic form or in molecular form. ठीक है, may exist in atomic or molecular form or apart from that may exist in solid bulk of atoms. Next one is compounds. They are formed by those pure substances that are composed of composed of more than one type of atoms in some definite proportion and exhibiting exhibiting characteristic characteristics different
compounds are always going to exist in molecular form or maybe solid ionic bulks. Compounds may exist in solid ionic crystals or as molecular bulk. Is that okay? Next thing is homogeneous and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures rules. एग्जाम्पल्स तो पता है हम लोगों को, ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लिखवा रहा हूँ, पता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। देवांग, देवांग, Yes, sir. हाँ, आई एम आस्किंग, सारे वैरायटी के आपको एग्जाम्पल्स पता है ना? जी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल पता है, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल पता है? जी ओके। Homogeneous mixture, those mixtures in which composition is uniform for entire bulk are referred as homogeneous mixture. ठीक है? Example, all solutions are homogeneous. ठीक है? Including alloys. Alloy are solid solutions, including including alloy also referred
as solid solution. Also referred as solid solution. ठीक है. और then last one is heterogeneous mixture. इसके भी कुछ सब types रहते हैं. ठीक है. और heterogeneous solutions are those heterogeneous solutions sorry heterogeneous solution नहीं होता है, heterogeneous mixtures. हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी होते हैं, क्या होते हैं वो हम लोग को 12th में पता चलेगा. सॉल्यूशन क्या है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, those mixtures in which composition is not uniform everywhere in the bulk. Referred as hetero- Yes. The examples are all colloid. सुना है हम लोगों ने, ये नाम कभी सुना है. सस्पेंशन, क्या बोल रहे हो. सैंड, मड और वाटर का सस्पेंशन नहीं सुना है हम लोगों ने. मिल्क एज अ टाइप ऑफ कोलॉइड नहीं सुना है हम लोगों ने. क्या बोल रहे नहीं, हो. नहीं बताया. भाई तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं थे. अरे टेक्स्ट बुक में था ही नहीं तो क्या मैं पढ़ेंगे. ढूंढ के लिखा दूंगा तो. अबे मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को. कौन से बोर्ड के है. आईसीएससी. हमारे हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं था. पेज का कंसाइज पता नहीं मेरे को. क्या बोल रही है. कंसाइज में पढ़ा हुआ है मैटर्स पहला चैप्टर में. हम लोग को ऑयल एंड वाटर वगैरह था. सैंड, हाँ हाँ सैंड तो वगैरह वो सब ऑयल था. एंड वाटर जो है वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और वही सस्पेंशन क्रिएट करता है. हाँ पर उसका सस्पेंशन वगैरह कुछ नहीं बताया. हेटेरोजेनियस मिक्सचर वगैरह पता है. टीचर ने बताया होगा, तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा. हो सकता है, क्या मालूम. ये तो किताब में लिखा नहीं है, फालतू के बक रहे हैं टीचर. अरे और नहीं तो all colloids and suspensions are example of heterogeneous mixture. Suspension, अबे दो एग्जांपल तो दिया ना. मिल्क इज अ सस्पेंशन, मिल्क इज अ कोलॉइड. अब वो पढ़ोगे 12th. ठहरो. एंड सस्पेंशन मड एंड वाटर.
sand in water, sand in water. अबे सब पढ़ा, मतलब सारी चीजें यहीं पे। हाँ, सॉल्युबल जो हो जाते हैं वो होमोजीनियस बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, और जो इनसॉल्युबल रहते हैं वो कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर कोलॉइड बनाता है, जो खुली आंखों से हमारे नहीं दिखेगा बट स्टिल प्रेजेंट रहेगा, और उसका प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं बाय पासिंग लाइट। ठीक है, लाइट को स्कैटर करता है, सॉल्यूशन कलरफुल दिखने लगेगा। जब लाइट डालेंगे तब व्हाइट लाइट डालेंगे, फ्लूइड्स दिखने लगेगा या रेडिश दिखने लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, और सस्पेंशन में क्लियरली हमको पार्टिकल्स दिखेंगे कि अच्छा ये तैर रहा है। ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल पानी के अंदर पड़ जाएंगे तो तैरते हुए दिखेंगे, ना मिसिबल होंगे ना इमिसिबल रहेंगे, मतलब इमिसिबल रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, राइट? दे आर सस्पेंशन। The suspension particles are much larger in size, which cannot be accommodated in between the interparticle spacing of water. ठीक है, colloid के साथ क्या होता है? The particles are large but not large enough to be seen by naked eye. ठीक है, but still they are not accommodated inside the interparticle spacing of the liquid particle या solvent particle. तो आता है ना सस्पेंशन मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस में आया ना। ठीक है, सॉल्यूशंस भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो वो गलती से मैंने हेट्रोजीनियस लिख रहा था, उसके बाद सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशंस के दो टाइप होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जब पूरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज जब सेम रहता है, वी कॉल इट होमोजीनियस सॉल्यूशन। और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फेजेस अलग अलग होते हैं, यानी स्टेट्स अलग अलग होंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। नेवरदलेस अभी सॉल्यूशन के बारे में नहीं जानना हम लोगों को, खाली ये हेटेरोजीनियस कहाँ पे रेफर्ड है? अरे थैंक्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नाउ वी विल कम टू, नहीं इसमें स्पेलिंग की मार्क्स उतनी छोटी चीज है। Chemistry is a central science. I'll just walk through it once, and इसके भी कुछ informations होंगे तो I'll just collect and write it down. Chemistry is a central science. Its knowledge is required in studies of physics, biological science, applied science, and earth and space sciences. The scope of chemistry is in every aspect of life. For example, the air we breathe, the food we eat, the fluid we drink, our clothing, transportation, fuel supplies, and so on. Though it is an ancient science, due to development and advancement in science and technology, chemistry has developed as modern science. Technological development is sophisticated instruments expanded our knowledge of chemistry, which now has been used in applied science such as medicine, dentistry, engineering, agriculture, and daily home use products. Nature of chemistry. Chemistry is traditionally classified into 5 branches. Very good. Let us mark it. कन्वेंशनली नहीं था, कन्वेंशनली यही तीनों है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब इसको बायोलॉजिकल और एनालिटिकल, नहीं एनालिटिकल पार्ट भी था, बायोलॉजिकल पार्ट रिसेंटली ऐड हो गया है। नेवरदलेस बायोलॉजिकल ठीक है, चलो यार बायोलॉजिकल भी था, प्रोटीन वगैरह तो हम करते ही थे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी, बट देखो बेसिकली बायोलॉजिकल जो है ना, दैट gets somehow enjoined, or it is kind of part of organic chemistry, sub part of organic chemistry.
Analytical chemistry is more of part of physical chemistry. However, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी वो दोनों यूज किया जाता है. बेसिकली एनालिटिकल इज बेसिकली अ जनरल idea how you are going to analyze the presence of any of the elements. So वो काफी generic है. Nevertheless, organic chemistry is study of properties and reaction of compounds of carbon. Inorganic is, so they are trying to give you a basic idea of what the different parts of chemistry you are going to deal with. Inorganic is all other substances that are not organic. कार्बन के कंपाउंड जो होंगे, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट वेरी फ्यू लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स. कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स एंड मोनोऑक्साइड इंक्लूडिंग डाइऑक्साइड, इनके जो या इनसे रिलेटेड कंपाउंड जो होते हैं, बस इनके कंपाउंड, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक. बाकी सारे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होंगे, दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाउएवर ऑर्गेनिक सर पढ़ाना चालू किए होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक डेफिनेशन उन्होंने बताया होगा तुम लोग. ठीक है, सो वी विल स्टिक विद दैट फंडामेंटल डेफिनेशन. इसमें भी उस चैप्टर में बेसिकली दिया हुआ है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो मिल जाएगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. नहीं, कार्बन कंपाउंड नहीं, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में है. फिजिकल केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स विद गाइड केमिस्ट्री. So physical chemistry is going to be a very generic form or understanding, or you can say at an advanced level it is application of physics general principles in order to explain the chemical behavior of different substances. ठीक है, at microscopic level and macroscopic level, दोनों लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी, बल्क में भी, दोनों केसेस में, in order to explain the chemical behavior and properties of any substance, जो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, ठीक है, they all are referred or they are part of physical chemistry. and उन प्रिंसिपल्स को हम ला करके अपने, मतलब ऑब्वियसली एक डिजाइन फ्रेमवर्क है, उसमें हम ला करके अप्लाई करते हैं, एंड वी डेवलप सम यूनिक प्रिंसिपल्स जो हमको केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे होगे, सर पढ़ा रहे हैं रियल गैसेस. ठीक है, रियल गैसेस की प्रॉपर्टीज. उसके पहले आइडियल गैस पढ़ाया सर ने, डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया. एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के टाइम पर यू यूज डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स यूज किया, देन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन यूज किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल यूज किया. तो काफी सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को इनबिल्ड करके वी डेवलप्ड आवर बोर्स मॉडल, उससे रेडियस वगैरह निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग निकाली, फिर उस काउंटिंग के ऊपर बेस्ड अब जो चीजें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह जो हम पढ़ेंगे, दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स, और यू कैन से बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स जिसको हमने अप्लाई किया, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डेवलप्ड सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द केमिकल बिहेवियर, और उसको हम फिर यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, एंड दैट यूटिलिटी इज गोइंग टू बी सीन इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर रिलेटेड टू physical principle or physics principle. It deals with the study of properties of matter. It is study of atoms, molecules, and fundamental concepts related to electrons, energies, dynamics therein. It provides basic framework for all other branches of chemistry. So we are talking about physical chemistry. It actually provides basic framework for all other domains of chemistry. ठीक है,
Yeah, it provides explanation for why something is happening. We can say it like that. Let us understand first what pure substance and mixtures are. Pure substance have a definite chemical composition, a fixed definite chemical composition. They always have same properties regardless of their origin. Mixtures have no definite chemical composition and hence no definite property. Examples of pure substance: pure metal, distilled water, etc. Example of mixture: paint, mixture of oil, pigment and additive; concrete, mixture of sand, cement and water. Which of these are mixtures and pure substance from the following? Can we categorize them? Sea water क्या है? Mixture है, pure substance है, mixture है. Gasoline, gasoline होता क्या है? उससे आग लगती है, मेरे को इतना पता है। और पेट्रोल को बोलते हैं gasoline. It's not. It's a क्या होता है? Mixture. ठीक है, चलेगा. Gasoline is a mixture. Skin, सब बायो के नहीं है. ठीक है, चलेगा. Skins are pure substance. कंपाउंड होता है, प्रोटीनस कंपाउंड, प्रोटीन से बना हुआ होता है स्किन, और प्रोटीन इज अ कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड. अच्छा हाँ, लेकिन इसको भी हम मिक्सचर बोल सकते हैं. रीजन ये है कि इफ यू आर गोइंग टू कट थ्रू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ स्किन, कॉम्पोजिशन में वेरी. ठीक है, तो मिक्सचर बोल सकते हैं, चलेगा. अ रस्टी नेल, इज इट अ मिक्सचर? क्यों? कार्बन तो नहीं रहता, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड रहता है Fe2O3, और फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है. ठीक है, दो चीजें हैं, चलेगा. दो कंपाउंड का मिक्सचर है. अ पेज ऑफ टेक्स्ट बुक, इट इज अगेन अ मिक्सचर. डायमंड, इट्स अ प्योर सब्सटेंस. नहीं, वो प्योर है, कार्बन रहता है खाली. हाँ, लेकिन उसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे. डायमंड बोल रहा है मतलब प्योर ही बोल रहा है. उसकी बात नहीं कर रहा. डॉटेड कार्बन, हाँ, डॉटेड डायमंड. फिलहाल वो प्योर की बात कर रहा है. हाँ हाँ. Pure substance are further divided into elements and compounds. Element are pure. diamond का color vary होगा, अलग-अलग diamond का. Depending upon refractive index. वो internal properties होती है, इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास है और उसका स्पेस किस एंगल्स पे कट किया गया है. Original color क्या? कुछ नहीं होता. It's G color. A white color. There are white, yellow, brown, red, blue, and pink. गुड. वो सारी चीजें एक्चुअली मिक्स करके हम बनाते हैं. ओरिजिनल कलर डायमंड का कुछ नहीं होता है. दो चीजों पर डिपेंड करते हैं. इफ यू आर एडिंग सम इम्प्योरिटी टू इट, द कलर चेंजेस, नंबर वन. दूसरा, फेस कटिंग आपने कैसे करी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है. नेवरदलेस, हमें डायमंड की केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़नी है फिलहाल. विल गेट इनटू द फर्दर डिस्कशन. क्या? हाँ. Yes, yes. Pure substance are further divided into elements and compounds. Elements are pure substances which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes. Okay, so we'll have to modify our definition a bit. वहां पर सिर्फ physical changes मैंने डाल रखा है, उसको physical methods और ordinary chemical methods भी ऐड कर देते हैं. और ordinary chemical methods.
अब what they mean by ordinary chemical method is just known to them. I'm not very much convinced with this idea. ठीक है, बेसिकली ऑर्डिनरी का केमिकल मेथड का मतलब हो गया थोड़ा गर्म किया ठीक है, पानी में मिला डुला दिया, ऐसी किसी चीज में मिला दिया, तो उन सारी हरकतों से वी कैन नॉट फर्दर ब्रोक इट डाउन। ओह सॉरी, आप ऑनलाइन लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा ना, प्योर सब्सटेंस में ये वाला पार्ट ऐड किया मैंने। ऑनलाइन जनता, अनन्या एंड देवांग, हाँ सर, नोट कर लो। यस सर। कर रही हूँ ओके, कर रही हूँ। ब्लू कलर के साथ क्या चीज? डायमंड कलर के साथ सिलिकेट ऐड करते हैं थोड़ा सा, या कुछ आयंस डालते हैं एज ए इम्प्योरिटी। हाँ, ओरिजिनल के अंदर। हाँ, वो नेचर डालता है, हम थोड़ी डालेंगे। हाँ, नेचुरली नेचुरल में नेचर डालेगा और आर्टिफिशियल में हम डालेंगे। आर्टिफिशियल डायमंड हाँ, नहीं नेचर भी डालता है, नेचर इज एक्सपर्ट इन इट। सारे जो हमारे ये कलर्ड स्टोन्स होते हैं, हाँ, तो ये जेम स्टोन्स का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही रहता है सबका, उसमें आयंस थोड़े थोड़े अलग अलग वेरी करते हैं एंड यू हैव डिफरेंट कलर्स। ये सारे जो होते हैं दे आर ऑल एल्यूमिनियम सिलिकेट, सारे जेमस्टोन और एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब उसमें अलग अलग में अलग अलग, जैसे कॉपर थोड़ा सा चला गया तो ब्लूइश हो जाएगा, सफायर बन गया। ठीक है, आयरन थोड़ा सा चला गया तो ग्रीन हो जाएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी ऑफ आयरन विच इट हैज ऑब्जर्व, वो भी 2+ स्टेट में किया है तो ग्रीनिश रहेगा, 3+ स्टेट में कर लिया है तो ब्राउन बन जाएगा। ठीक है, doesn't have a particular value, like fixed value नहीं रहती। हाँ, फिक्स वैल्यू नहीं रहती है, वो अलग अलग क्वांटिटी में ऐड, क्या क्या मतलब किस वैल्यू के साथ? अच्छा, प्राइस नहीं यार, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ इनका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं रहेगा, तो कितने आयंस किसमें हैं उसके हिसाब से कलर डिफाइंड होता है, बट एक सोर्स जो रहेगा, मतलब एक स्टोन से अगर कट करके बना रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है एक तरफ वो ज्यादा डार्क हो, दूसरी तरफ कम डार्क। Diamond is also used in ornament, हम्म, just डायमंड्स का ये भी बनाते हैं हम, हमारे सर्जिकल टूल्स में रहता है कटिंग के लिए, ऑर्गन कटिंग के लिए, प्लस मैं डायमंड ब्लेड ऑपरेशंस वगैरह में यूज करते हैं हम। न्यूरो सर्जरी का जो होता है ना, उसमें डायमंड ब्लेड यूज करते हैं। हाँ, दिमाग को काटने के लिए। हाँ, sharp है। एक तो शार्प रहता है, दूसरा रिएक्टिव नहीं रहेगा। और ठीक diamond है, भी एकदम low quality का, तो quality मतलब ऐसे देखे बहुत से और हार्ड भी होता है, शार्प भी होता है और हार्ड भी होता है, तो टूटने फूटने की झंझट नहीं रहेगी, सोफिस्टिकेटेड रहेगा तो इजी कटिंग होगी। सो यस, हाँ, नोट कर लिया हम लोगों ने। आई होप वी आर डन। हाँ सर। Elements are further classified as metal, non-metals and metalloids. Metals की properties दी हुई है, metals have luster, conduct heat and electricity, ये सारी चीजें पता है हम लोगों को, can be drawn into wires, are ductile, can be hammered into thin sheets, are malleable. Example: gold, silver, copper, iron. Mercury is a liquid metal at room temperature. It is the only metal which is liquid at room temperature, right? पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताऊंगा तो सारी चीजें बता दूंगा। नॉन मेटल्स, आई हैव नो, सॉरी आई हैव नो लस्टर, द ओनली lustrous substances iodine and diamond. Non-metal metals having lusters are iodine and diamond.
क्या क्या? लस्टर्स मतलब अपना सेल्फ शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस खुद का चमक होना, चमक, दे आर चमकीला पदार्थ। दे आर पुअर, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हेलो, हेलो, आ रहा हूँ 10 मिनट में निकलूँ। हेलो, हाँ 10 मिनट में निकलूंगा, 10 मिनट में निकलूंगा यहाँ, 10 से 12। हाँ वो याद है, तीनों समान याद है। अरे हाँ भाई याद है, रुक जाओ। पता नहीं। चलो भैया, ओके। Cannot be hammered into sheets or drawn into wire because they are brittle. Examples: iodine, nitrogen, carbon, oxygen, sulfur, they are all non-metals. Metalloids, some elements have properties intermediate between metals and non-metals are called metalloid or semi-metals. This include arsenic, silicon, germanium, boron भी होता है. We are going to work on them in chapter periodic properties. Compounds are the pure substance which can be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes. ठीक है. Elements cannot be broken down into, अबे एक सेकंड, मैंने प्योर सब्सटेंस वाले में कर दिया ऐड ना, जरूर कर दिया, ये सही लिखा था मैंने एक्चुअली यहाँ पर, मुझे इसके बारे में तो लिखते हैं। ओके, ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया। ध्यान नहीं दिया। ये एक्चुअली एलिमेंट्स के डेफिनेशन में इन्होंने डाल रखा है, वही मैं भी थोड़ा सा परेशान, कट कर, सॉरी। दैट वाज पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और वो मुझे भी लगा, मैंने गलत देख लिया, मुझे लगा प्योर सब्सटेंस में उन्होंने डाल रखा है, वो ये नीचे कंपाउंड का देखा तो मुझे ध्यान गया कि वो कहाँ डाला है। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। और ये जो लिखा था वही मैं भी सोच रहा था कि मैं उस समय भी बोला कि दो आई एम नॉट वेरी कन्विंस, बट हाँ ठीक है, लिखा हुआ है तो डाल देता हूँ। हेलो, यस, क्या क्या, सॉरी। हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी तो नहीं। आप अपना रिज्यूमे भेज के रख दीजिए ना, कुछ होगा तो फिर मैं बता दूँ। ओके, 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 लेट अस मूव ऑन. Compounds, they can be broken into simpler substances. They are made up of more than one element. Number one, they are always going to be made up of more than one element. ठीक है. And in some fixed ratio or some definite ratio, and they can be broken down into simpler substances, more simpler substance by ordinary chemical changes. That is the definition of compounds. I think those pure substance that are more than one type of atoms in some definite proportion and exhibiting characteristic different from its constituent atoms. यहाँ पर हम इनफैक्ट ऐड कर सकते हैं, they can be broken into more simpler substance
I'm adding this. They can be broken down into simpler substance by ordinary chemical methods. हाँ, मैंने डाल दिया ऑलरेडी मैसेज। ये लिखते हैं। हाँ, 2 लेक्चर्स है, एक तो मॉर्निंग में है और उसके इमीडिएटली बाद दूसरा वाला भी है। कल मैथ्स का चैप्टर 2 कराऊंगा। 7:45 फिजिक्स और उसके बाद मैथ्स। मैथ्स का एक्स्ट्रा लेसन है ना, तो मतलब मैं नहीं बैठू चलेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे लिए नहीं है। ओके, थैंक यू। वेलकम। कितना पढ़ाऊंगा तुझे? वही तो सर, वही तो कितना पढ़ाते हो आप? ये बात तो है। और फिर हाँ, नहीं नहीं, मुझे और भी लेक्चर्स लेने हैं। मैं तो लेक्चर लेता रहूंगा 4 बजे तक कंटिन्यूसली बिना ही। बस एक बार सुबह 7:45 बैठूंगा, बीच में एक कुछ खाने पीने का लेते आऊंगा, खाते पीते शाम के 4 बजे सीधे यहाँ से। हाँ सबको भी जल्दी आना है। हाँ, मुझे, हाँ मैं 7:45 आ जाऊँ। मिक्सचर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा एक सेकेंड, तुम लोगों ने ये नोट किया था कि नहीं? ये वाला चीज तुम्हें दिखा था किया ऑनलाइन? किया। ये वाला ठीक आ, है, चलेगा। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस। Mixture contains two or more substances in no fixed proportion. They may be separated by physical methods. Basic चीज जानते हैं हम लोग। Mixture are further divided into homogeneous and heterogeneous. Solution are homogeneous mixtures because molecules of the constituent solute and the solvent are uniformly mixed throughout its bulk. In heterogeneous mixture, molecules of constituent are not uniformly mixed throughout the bulk. For example, suspension of insoluble solid in a liquid. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक वगैरह को पानी में मिलाओगे ना, इट इज गोइंग टू फॉर्म सस्पेंशन। देयर आर मेनी सस्पेंशन के एग्जांपल्स आप क्रिएट भी कर सकते हो ऐसे। आई मीन, और दूसरा कोलाइडल जो होता है, जो मैंने बताया मिल्क इज अ कोलाइडल। तो उसमें होता है क्या है कि उसका क्रीम जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली दैट फॉर्म्स अ कोलाइडल इन द मैट्रिक्स ऑफ वाटर। बाकी जो होता है, जो फ्लूइड नेचर होता है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, और उसमें जो क्रीमीस पार्ट होता है एंड प्रोटीनस पार्ट होता है, दैट फॉर्म्स द ये, हाँ वो कोलोइड फॉर्म करता है वाटर के अंदर। तो मलाई is basically कोलाई। मलाई इज बेसिकली कोलोइड इंक्लूडिंग द, या ऑल द मलाई इज, यस। प्लस प्रोटीन भी उसके अंदर जो है वो भी कोलोइड फॉर्म कर रहा है। सो बेसिकली देखो, क्या होता है जब हम नींबू वगैरह डालते हैं, तो वो एक्चुअली कोलोइड को ब्रेक करने में, सेपरेट करने में हेल्प करता है।
एंड देयरफॉर वो फट जाता है एंड उसका प्रोटीनस एंड फैटी पार्ट जो होता है दैट गेट्स कंप्लीटली सेग्रीगेटेड फ्रॉम द वाटर पार्ट। अच्छा, इसलिए फिर वो पानी हाँ, आता है। राइट। सो ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है। इफ यू ऐड सम एसिड और सम बेस इनटू इट, इट विल गेट कंप्लीटली सेग्रीगेटेड। इट द सॉल्वेंट जो होता है इज अनेबल टू फर्दर होल्ड द कोलॉइड पार्टिकल। उनके अंदर जो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है, इंटरेक्शन होता है, दैट ब्रेक्स डाउन समहाउ। ठीक है, ब्रेकिंग के रीजन होते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। अच्छा, सरफेस केमिस्ट्री एचएससी में 11th में ही है, सो वी विल बी exploring that part in 11th. States of matter, you are also aware that matter exists in three different states of matter, namely solid, liquid and gas. You are going to learn about these three states in unit 3 chapter 10. In solid, constituent atoms or molecules are tightly held in perfect order. ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं। And they have fixed volume. Liquid contains, liquid का definition, you guys know this, within liquid, while in gases the particles are far apart. Intermolecular separation is large. Liquids and solid state. ठीक है। Three states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. Elements and compounds. Mercuric oxide क्या है? What is mercuric oxide? Compound या element? Helium gas. Compound. This is compound. Helium gas. Element. Water. Compound. Hydrogen and water. Table salt. NaCl है compound. Iodine. Element. Mercury एक काम is also करते हैं, element, right? CE लिखते हैं, लंबा लंबा लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So this first one is C, second one is E, third one is C, fourth one is C again, E. fifth one is E, mercury is E, oxygen is E, nitrogen is E. So very good. Properties of matter and their measurement. Different kinds of matter have characteristic properties which can be classified into two categories as physical property and chemical property. Physical properties are those which can be measured or observed without changing the chemical composition of substance. Physical properties, those properties which can be measured without changing the chemical composition of the substance, like mass, melting point, boiling point, density, refractive index, conductivity. ये सारी चीजें जो हैं, इनको मेजर करने के लिए हमको कॉम्पोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। उठा लो, उठा लो, बोलो 5 मिनट में निकालो। मैं क्लासेस में क्या हुआ? मैं अभी छूटूंगा क्या हुआ? Color, order, melting point, boiling point, density, etc. are physical properties. Chemical properties are properties where substance undergo a chemical change and thereby exhibit change in chemical composition. अब chemical properties क्या रहेंगी? Bond strength, ठीक है, ज्यादा एनर्जी देंगे तभी टूटेगा, और जब टूट ही गया तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। ठीक है ना? For example, coal burns in air to produce carbon dioxide and magnesium wire burns in air in presence of oxygen to form magnesium oxide. Heat देंगे दोनों ही केस में ये लोग, quantified heat change जो होगा that is going to be chemical property. Measurement of properties. Many properties of matter are quantitative in nature. When you measure something, you are comparing it with some standard. ठीक है?
मतलब क्या है, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम 1 kg भाजी खरीदने जाते हैं, क्या करते हैं, तौलते हैं उसको। तौलने का मतलब क्या है, यू आर कंपेयरिंग इट टू सम स्टैंडर्ड वैल्यू। वो जो तराजू बना हुआ है, हमारा वेइंग मशीन बना हुआ है या वेइंग स्केल बना हुआ है, वो क्या है, वो भी किसी स्टैंडर्ड्स के साथ क्वांटिफाइड है। व्हाई डू वी कॉल इट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एज 1 kg? क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है। उस वैल्यू को मैं 1 kg बोलूंगा, इतना मैटर होगा तो मैं 1 kg बोलूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So every quantified thing is always expressed in terms of some standard value which we have uh, considered to be standard because of certain reasons or logics related to some principles। कुछ तो प्रिंसिपल है, कुछ लॉजिक है, उसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर वैल्यू और उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस क्वांटिटी का स्टैंडर्ड हमने रख रखा है। ठीक है, जैसे मास का मैंने बोला 1 kg, तो 1 kg हमने स्टैंडर्ड जिस किसी भी चीज को मान रखा है, उसके पीछे देयर इज सम रीजन। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट। मेनी, हाँ, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, etc आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। Any quantitative measurement is expressed by number followed by units. So any quantitative measurement is always expressed by a number followed by a unit। ठीक है, हर क्वांटिटी का अपना कुछ पर्टिकुलर यूनिट होगा, तो एक नंबर डालते हैं और फिर यूनिट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम कैन बी मेजर्ड एज 10 मीटर। Here 10 is the number and m denotes meter, the unit in which length is expressed। हाँ, the standards are chosen arbitrarily with some universally accepted criteria। Some universally accepted criteria। Now ये universal acceptance जो है criteria का, that generally has some logic associated to it। They are not very arbitrary। ठीक है, हाँ, अब हम बोलते हैं कि क्यों वही लिया, देर इज नो रीजन फॉर इट कि क्यों उसी को लिया हमने। यू मे हैव समथिंग बेटर टुमारो एंड थिंग्स गेट कीप्स ऑन गेट मॉडिफाइड। ठीक है, जैसे इनिशियली हमने लेंथ के लिए जो लिया था पैरामीटर, उसको चेंज किया है इसी में दिया हुआ है, मैं बता दूंगा आने पर लेंथ, डोंट वरी। और मास के लिए भी हमने चेंज किया है। तो क्या चेंजेस किया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। द आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, ये वाले पार्ट्स जो हाईलाइट किए हैं, कैन वी ऑल राइट इट ऑन इन आवर नोटबुक? अगर मैं ये पीडीएफ भेज दूं तो घर पे लिखा जाएगा? चलो, इतना काम कर लेना। देयर आर सेवरल, आई मीन, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, मैं भी लिखूंगा तो देख देख के ही लिखूंगा। नहीं तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, जैसे एलिमेंट की डेफिनेशन लिखा और वो प्योर सब्सटेंस वाले का गड़बड़ हो गया। These are several systems. There are several systems in which units are expressed, such as CGS, MKS, FPS। तो units का expression जो है, before accepting the standard procedure, we had multiple systems: MKS, CGS, FPS, और यही नहीं, इंडियन सिस्टम भी है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हर कंट्री, हर लोकेलिटी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उनकी सोसाइटी ने वो जनरेट किया होता है, एंड बट उससे हम चीजों को कैलिब्रेट नहीं कर सकते। जैसे
मे बी चाइना में उनका अपना कुछ यूनिट होगा, तो 1 kg मैंगो और हमारा मतलब उनका 1 kg तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, और हमारा जो इंडियन यूनिट्स था उनको, सो हाउ आर वी गोइंग टू कंपेयर देम? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इंडिया में, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव हर्ड इट और नॉट, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेब। सेब, क्या? फन से, हाँ गज, हाँ, गज तो शेर, मेजरमेंट का है। खेर, क्या है वो? क्या लिखा आपने? अबे शेर लिखा है, दिख नहीं रहा है बेवकूफ। अरे कैसा लिखा है? शेर है, खेर है, क्या है वो? 100 है, 100 बेटा, 100। तो उसका 100 का बीच में का लाइन डालो ना। अभी डाला तो था साइड में, बीच वाला लाइन क्यों डालू? वो वाला नहीं होता है उसमें, सारे हाँ सब एक ही होंगे। आ ये नहीं हाँ, ये होते। लाइन। पक। अरे गलत करवा दी। पंचेर क्या होता है? ओके, मैं बताता हूँ। वन शेर जो होता है ना, इट्स अ लोकल यूनिट जनरली यूज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400 ग्राम, रफली 400 ग्राम, ठीक है? लॉब का जो वेट होता है ना, पाउंड का जो वेट होता है 444, सॉरी 422 या 426 होता है, ये उससे थोड़ा सा कम होता है, 390 टू 400 के आसपास होता है। अब इसका 5 times, that roughly becomes 2 kg, is this पंसे। तो काफी टाइम पहले गांव गांव में जाया करते थे ना, दिस यूज टू बी, मतलब जब हम बच्चे थे, अब तो नहीं, अब तो हर जगह पे वही केजी वाले बटा आ गए हैं, बट हमारे बचपन में वी हैव सीन दैट दिस यूज टू बी, यू कैन से, यूनिट ऑफ मास मेजरमेंट इन लोकेलिटी। इन लोकेलिटी कोई ट्रांजेक्शन करना है तो दे यूज टू डू दिस पर्टिकुलर। जैसे जनरली होता है क्या है, कोई किसी के यहाँ चावल या गेहूं उपज रहा है, किसी के यहाँ सब्जी उपज रहा है, तो सब्जी से उसका बार्टर करना है, या ठीक है सब्जी नहीं ज्यादा हो गया तो इससे तौल के रख लेते हैं। सो इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग दोज डेज, मेरी बचपन में तो था, मैंने देख रखा, ठीक है? और ऐसे आप अपने लोकेलिटी, मतलब अपने गाँव तरफ जाओगे या जाते होगे कभी, तो you can notice this or you can ask at least elders, they will guide you regarding this। वो डेफिनेटली बताएंगे कि हाँ ऐसा कुछ यूनिट्स हुआ करता है हमारा, ठीक है? तो जनरली यही है कि हर लोकेलिटी, हर एक सोशल सेटअप में दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स वेयर देयर, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड बट देयर लोकल यूनिट्स यूज टू बी देयर, ठीक है? कंपैरिजन वाज क्वाइट डिफिकल्ट, तो इसके लिए हमने चीजों को स्टैंडर्डाइज किया, एंड अब हर जगह पे लगभग एसआई यूनिट्स फॉलो होते हैं। यूएस में फुट पाउंड ब्रिटेन, ब्रिटेन, एफपीएस ब्रिटेन का है। नहीं, यूएस में यूज होता ना ना, यूएस ने ही तो सारी चीजें चेंज करी है, एमकेएस को एसआई किया, क्योंकि अग्री एमकेएस उनका है यूएस का, तो एमकेएस को एसआई में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग, तो इसलिए नया नाम उसने दिया कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सारे लोग मानो। मेरा एमकेएस नहीं लोगे तो देखो, इसमें जो चीजें हैं लगभग वही चीजें तो एसआई में भी डाल रखी गई हैं, मीटर, ठीक है? मीटर, ये सो किलोग्राम, किलोग्राम। एमकेएस वाज डेवलप्ड बाय यूएस, एंड वो नाम से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी यूएस कि हाँ, कि एमकेएस कैसे लेंगे, तो बोला ठीक है ऐसा ही लो। और वही नहीं किया, कुछ और बुद्धिमानी भी किया, बोला कि सेंटर्स वगैरह जो होंगे ना इंटरनेशनल, देखो ये कहाँ पे डाल रखा है, पेरिस में डाल रखा है, लेके रखो इंटरनेशनल, यूनिट मेरा रहेगा, जगह तुम्हारा रहेगा। जगह से दुनिया थोड़ी चलती है। सो आई मीन obviously they play by mind, no doubt about it। SI unit in 1960 General Conference of Weight and Measures proposed revised metric system called International System of Units or SI units। Metric system was originated, metric was originated in France in late 18th century, oh sorry,
और मुझे जहां तक पता था कि यार यूएस का है ये, चलेगा। नहीं, बट एफपीएस जो है वो ब्रिटेन का है, क्योंकि वो हम लोग इंडिया में भी काफी टाइम तक वो लोग चलाते रहे थे। लैटर बेस्ड ऑन कॉमन स्टैंडर्ड्स, या इसकी न्यूटन की जो बेसिक फॉर्मुलेशंस है ना, लॉ ऑफ मोशन वाला, उसमें वो एफपीएस सिस्टम ही यूज किया। Latter based on common standard systems, international system of unit was established. SI system has 7 base unit listed in 1.1. Fundamental scientific quantities, other quantities like speed, volume, density can be derived from these. ये वाला पार्ट जो है ये फिजिक्स का है, जब हम लोग पहला चैप्टर करेंगे तो वहां पर जाएंगे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तक आप लोग नोट कर लेंगे। इज दैट ओके? ये टेबल क्या क्या फंडामेंटल है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 है इनको बोला जाता है, और ये एक सेकेंड, फंडामेंटल डायमेंशनल फंडामेंटल यूनिट। डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये एफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो और होते हैं, वो होते हैं नॉन डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनका नाम है, पहला प्लेन एंगल, एसआई यूनिट इज रेडियन, ठीक है, और दूसरा सॉलिड एंगल, एसटीआर। ठीक है, नोट कर लेंगे हम लोग। वेरी गुड। ये पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ ग्रुप पे, पक्के से कर लोगे ना? भरोसा नहीं है मुझे तुम लोगों पर। इतना कम भरोसा? हाँ, चेक कर ले। अब वो तो करना ही पड़ेगा मुझे, बिना माफ करना है। लिखना ही है, लिखना ही है। अबे यार, अभी ये पूरा भेज दो क्या? बार बार भेजते रहेंगे तो प्रॉब्लम। चलो भेज दो। अभी टाइम, इसको क्या प्रॉब्लम है सर? इस डायलोड, नो बेटा, नो। यस, Yes, I can really have that. PCM. Yes, I. okay, fine, we may leave now.